Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear student. I am Mehboob Ali, lecturer zoology, presently posted at Respond Higher Secondary School. Today I am delivering a lecture on fertilization. What means fertilization? Fertilization is the fusion of male pronucleus and female pronucleus to form diploid zygote. This process is called fertilization. ठीक है? तो fertilization, in this topic we will discuss role of uterus in sperm transport, sperm entry, 1.4 capitation and 1.5 physical and chemical change occurring during the process of fertilization. 1.5a, in this physical and chemical changes there are some important steps which are take place during the process of fertilization, such as role of hyaluronidase enzyme, role of acrosome reaction, and the last step is syngamy and karyogamy. First important point is site of fertilization. Fertilization होती कहाँ पे है? The site of fertilization takes place in isthmus and ampullae junction. Isthmus and ampullae junction of fallopian tube. तो यहाँ पे fertilization जो कहाँ पे होता है? Fertilization occurring in fallopian tube at the junction of isthmus and ampullae. This is the uterus, this is the cervix, and this is the vagina. ठीक है? This is the vagina. There are two types. There are two fallopian tubes in female. This is the right fallopian tube. This is the left fallopian tube. Fallopian tube divide in three important parts. One is the infundibulum, you know that. Second is the ampullae, and the third one is isthmus. Isthmus is just near the fundus. This is the fundus of uterus. तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन होता है कि किस जगह पे? फर्टिलाइजेशन occurs at the site of isthmus and ampullae junction. It takes place at the site of ampullae and isthmus junction. Second step is role of uterus in sperm transport. When male and female start sexual intercourse or coitus, after sexual intercourse, male inject semen inside at the side of cervix. तो after this sexual intercourse, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे insemination हो जाता है. Insemination means inject of sperm at the site of cervix, of vagina. तो यहाँ क्या करते हैं? मेल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इंसेमिनेशन होता है. इंसेमिनेशन के बाद सीमेन जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं मेल कहाँ पे? सर्विक्स, नियर द सर्विक्स. ठीक है? इसके बाद जो सेकंड होती है यहाँ, इसके बाद इंटरनल ओस कनाल, और यहाँ पे होता है इसके बाद एक्सटर्नल ओस कनाल. तो स्पर्म जो है इस कनाल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं कहाँ पे? एट द साइड ऑफ दिस यूट्रस. दिस इज द यूट्रस. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीमेन के बारे में. सीमेन के अंदर क्या होता है? सीमेन के अंदर एक तो स्पर्म सेल्स होता है, इसके अंदर होता है. तो सीमेन में क्या होता है? सीमेन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे सीमेन के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फाइब्रोनोजिन होता है. फाइब्रोनोजिन जो बनाते हैं वो दिस सेमिनल वेसिकल जो है इसके अंदर, इसकी मदद से यहाँ से सेमिनल वेसिकल सिक्रीट कर देते हैं फाइब्रोनोजिन. इसके अंदर होता है फाइब्रिन, और इसके अंदर फाइब्रोनोजिन, और एक यहाँ पे एक केमिकल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन होता है. ठीक है? प्रोस्टाग्लैंडिन सीमेन के अंदर होता है ये. अब मेल ने इंसेमिनेशन करते वक्त सीमेन को यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया. A single man release about how many semen? It release about
2 to 5 drop of cement or and each drop it contains and each drop they contain 200 to 400 million of sperm cells. एक सीमेंट के अंदर कितने, एक ड्रॉप्स ऑफ सीमेंट के अंदर कितने स्पर्म्स होता है, ये पूछा जाता है नीट के एग्जाम में. 200 to 400 मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं. अब यहां पे अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रोल, दिस रोल ऑफ यूट्रस. 1.2 जो है वो है रोल ऑफ यूट्रस इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट. इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट रोल ऑफ यूट्रस. यूट्रस का अहम रोल निभाता है. ठीक है. अब मैंने आपको बताया सीमेन के अंदर सबसे पहले फाइब्रोनोजिन होता है और फैब्रिन होता है. तो ये क्या करके रखते हैं, ये स्पर्म को फैब्रिन करते हैं. इट हेल्प, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन. इन द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन, तो ये बहुत अहम रोल निभाते हैं कोगुलेशन में. तो स्पर्म जो है ये यहां से रिलीज नहीं हो पाते हैं. ये किसके फॉर्म में रहते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में रखने में बहुत अहम रोल निभाते हैं. और तो फाइब्रोनोजिन और फैब्रिन जो है वो कोगुलेशन में मदद करता है. तो स्पर्म किसके फॉर्म में, सीमेन जो है वो सीमेन की फॉर्म में ही, लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं. ठीक है. तो यहां पे अब मैंने आपको बताया इस सीमेन के अंदर क्या है, एक केमिकल है जिसको क्या कहा जाता है, इसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहा जाता है. प्रोस्टाग्लैंडिन. अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये किसके साथ बाइंड होता है, ऑन द सरफेस ऑफ यूट्रस दे कंटेन प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर. इसके सरफेस के ऊपर क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स होता है. तो सीमेन के अंदर क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है. जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस के इस प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं जो यूट्रस के सरफेस पे होता है, एंडोमेट्रियम यूट्रस के सरफेस पे प्रेजेंट होता है. तो इसके साथ जब प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्रेजेंट होते हैं सीमेन में, जब ये इसके यूट्रस के प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर के साथ जब बाइंड हो जाते हैं तो यूट्रस क्या होता है, दिस यूट्रस स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन. यूट्रस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं. कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सीमेन यहां पे कोगुलेटिंग फॉर्म है वो अपवर्ड मूवमेंट करते हैं. तो क्या करते हैं, जब ये ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस एंडोमेट्रियम यूट्रस हेल्प इन द अपवर्ड, दे पुश द स्पर्म अपवर्ड. तो जहां पे जो सीमेन होते हैं वो अपवर्ड मूवमेंट कर लेते हैं. ठीक है. तो यूट्रस क्या करते हैं, अहम रोल निभाते हैं स्पर्म के सीमेन के ट्रांसपोर्ट में, बहुत अहम रोल निभाते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इस तरह पुश कर देते हैं. ठीक है. तो इस तरह अगर ये सीमेन है तो ये इस तरह पुश कर देते हैं, अपवर्ड मूवमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सीमेन होता है वो कहां पहुंच जाते हैं, वो नियर द फंडा टू यूट्रस के सामने पहुंच जाता है. अब क्या हो जाता है, जब ये यहां पे पहुंच जाते हैं कोगुलेटिंग फॉर्म में, तो इसके अंदर जब इस साइड इस यहां पहुंचने की वजह से इसके लिए क्या होता है, एक एंजाइम यहां होता है फाइब्रोलाइसिस एंजाइम प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो ये फाइब्रोलाइसिस एंजाइम क्या कर देते हैं, जो फाइब्रोनोजिन और जो फैब्रिन होते हैं वो इसको डैमेज कर देते हैं, उस एंजाइम को डाइजेस्ट कर देते हैं. तो डाइजेस्ट करने की वजह से अब जो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द सीमेन, अब ये कोगुलेटिंग फॉर्म में नहीं रहता है. न रहने की वजह से अब स्पर्म जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, सीमेन से बाहर निकल जाते हैं. 200 मिलियन ऑफ स्पर्म जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है. अब फीमेल के पास 2 ओवेरीज होते हैं, यहाँ पे 2 ओवेरी होती है फीमेल के पास. तो ठीक है. और फीमेल की जो ओवेरी के अंदर कल आपको पढ़ा होगा सर ने, मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक रेगुलर प्रोसेस नहीं है, वो एक इरेगुलर प्रोसेस है. अब जनवरी के महीने में ये जो ओवेरी है ये एग रिलीज करेंगे, ओव्यूलेशन करेंगे. ओव्यूलेशन के बाद यहाँ से एग रिलीज हो जाती है और ये एग जो है वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाते हैं थ्रू यहाँ पे छोटा पोर होता है जिसको ऑस्टिया कहा जाता है. ठीक है. अब एग जो है वो 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त ओव्यूलेशन प्रोसेस चलता है, जहां पे क्या हो जाता है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और वहां से जो ओवम एग जो है वो रिलीज हो जाता है, कहां से, ओवेरी से, और कहां पहुंच जाता है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाता है. अब फ्लोपियन ट्यूब के कहां पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे इस्थमस जंक्शन पे पहुंच जाता है. ठीक है. दिस इज द एम्पुला एंड इस्थमस जंक्शन पे पहुंच जाते हैं. यहाँ मूवमेंट सीलिया की मूवमेंट के थ्रू सीलिया मदद करते हैं, इसको पुल कर देते हैं और ये यहाँ एम्पुला और इस्थमस जंक्शन पे पहुंच जाता है. ठीक है. अब यहाँ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ
ओवम, यहाँ पर उलिमा होता है, दिस इज द उलिमा, दिस इज द जोना पेलुसिडा, and the third one is cellular layer which is called it as corona radiata. This is the corona radiata, ठीक है, this is the corona radiata which is also called as cellular layer. और ये कोरोना रेडिएटा किसका पार्ट है, किस लेयर का पार्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए, ये ग्रेफेन फॉलिकल का लेयर है, ठीक है। कुछ ग्रेफेन फॉलिकल जो है वो ब्रेक होके जोना पेलुसिडा के साथ अटैच हो जाता है, और यहाँ ऊपर एक हल्का लेयर होता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको उलिमा कहा जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज उलिमा, एंड द सेकंड लेयर इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा, द थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा, ठीक है। जोना पेलुसिडा कहां से बन के आते हैं, ये बनाता कौन है, ये गोल्गी बॉडीज बनाते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा टाइप की ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ओ ग्लाइकोसाइलेशन होता है, और जो भी ओ ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं वो गोल्गी बॉडीज करते हैं। तो ये जो जोना पेलुसिडा जो लेयर है वो किससे बनते हैं, किस ऑर्गेनेल से बनता है, वो बनता है गोल्गी बॉडीज से बन के आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको क्या कहा जाता है, इसको उलिमा कहा जाता है। उलिमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, ठीक है। तो ये रिलीज हो चुके हैं कहां से, during this 14 days of menstrual cycle, this worm release inside the fallopian tube and reach at the junction of ampullae and isthmus of fallopian tube. अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, worm है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, अब जो स्पर्म जो है वो यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द स्पर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब स्पर्म को कैसे पता चलता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक इरेगुलर प्रोसेस है, क्योंकि जनवरी के महीने में ये एक साइकिल को कंप्लीट करेंगे और फरवरी के महीने में ये एक को यहाँ से रिलीज करेंगे। इस तरह जो है कि अपनी साइकिल को क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। तो जब यहाँ से ओवम यहाँ से रिलीज हो चुके होते, यहाँ पे एक जो है यहाँ पे, अब स्पर्म जो है कंफ्यूज है कि वो इस फ्लोपियन ट्यूब के पास जाए कि इस फ्लोपियन ट्यूब के पास। अब ये एग्जाम में, नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो आप, दिस इज द लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा, इज द लेयर ऑफ, ये कहां से आते हैं, ये आते हैं ग्रेफेन फॉलिकल से, ग्रेफेन, ये दिस इज द लेयर ऑफ ग्रेफेन फॉलिकल व्हिच आर रप्चर्ड एंड अटैच्ड विद दिस layer of जोना पेलुसिडा ग्रेफेन फॉलिकल, दिस इज द लेयर ऑफ ग्रेफेन फॉलिकल। तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त पढ़ाया होगा, ग्रेफेन फॉलिकल जो है वो दो हार्मोन को सिक्रीट कर देता है, एक सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या सिक्रीट कर देते हैं, ये सिक्रीट कर देते हैं प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, मोस्ट ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर लेते हैं, ठीक है। कॉर्पस रिटर्न के वक्त प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा सिक्रीट होता है। तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ ज्यादा, अब यहाँ पे इसके ऊपर कोरोना रेडिएटा लेयर है, तो यहाँ से क्या ज्यादा क्या सिक्रीट होता है, यहाँ से सिक्रीट ज्यादा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ जो है अब केमिकल ग्रेडियंट, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से इसके अंदर केमिकल ग्रेडियंट किसका ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन का ज्यादा है। और स्पर्म के टेल पे क्या होता है, टेल पे जो दिस इज द हेड, दिस इज द नेक एंड दिस इज द टेल। स्पर्म के टेल पे एक सेंसर प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कैटेस्पर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कैटेस्पर। तो कैटेस्पर एक किस्म के सेंसर है। तो ये पता कर लेते हैं कि केमिकल ग्रेडियंट कहां ज्यादा है, यहाँ पे केमिकल ग्रेडियंट ज्यादा है क्योंकि यहाँ ओवम है और ओवम के ऊपर कोरोना रेडिएटा है जो सिक्रीट कर देता है प्रोजेस्टेरॉन, तो यहाँ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे स्पर्म यहाँ पे ज्यादा है, उसको कंफ्यूज है कि मुझे इस फ्लोपियन ट्यूब में जाना है कि इस फ्लोपियन ट्यूब में जाना है। तो इसको वो किस तरह रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वो केमिकल ग्रेडियंट की बेस पर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द स्पर्म, दिस इज द नेक रीजन, दिस इज द नेक, दिस इज द मिडल पीस एंड दिस इज द टेल। इस टेल के यहाँ पे एक सेंसर होता है जिसको क्या कहा जाता है, कैटेस्पर कहा जाता है। ये किसको सेंस करता है, ये सेंस करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को क्या करता है, ये सेंस कर देते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ क्या होगा, इस फ्लोपियन ट्यूब में ओवम होने की वजह से ओवम के जो कोरोना रेडिएटा है वो सिक्रीट कर देता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को ज्यादा सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से यहाँ किसका केमिकल ग्रेडियंट ज्यादा होगा? यहाँ इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन यहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ पे कम, यहाँ होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ ओम नहीं है। तो यहाँ स्पर्म जो है वो अपनी कैस्पर की मदद से रिकॉग्नाइज करेंगे कि यहाँ की प्रोजेस्टेरोन का केमिकल ग्रेडियंट ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो सारा स्पर्म किस ट्यूब की तरफ मूव करेंगे? इस ट्यूब की तरफ मूव करेंगे बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन and estrogen which is secreted by the corona radiata of ovum। ठीक है, तो इसके बाद देखो यहां अब इससे क्या हो जाता है, कैस्पर की मदद से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को जब ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, अपनी स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस स्पर्म की यहां तक स्पर्म जो है वो मूवमेंट नहीं करता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज ये होता है कि स्पर्म यहां से अपने टेल का इस्तेमाल कर देते हैं और यहां से क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे रोल ऑफ यूट्रस बहुत अहम रोल निभाते हैं। यूट्रस की मदद से स्पर्म जो है वो पुश, यूट्रस कंट्रैक्शन की मदद से ऑटोमेटिकली स्पर्म जो है वो यहां तक पहुंच जाते हैं विदाउट यूज ऑफ देयर टेल। अब इसके बाद यहाँ पे स्पर्म जो है जब फंडस रीजन पे पहुंच जाते हैं वो अपना टेल का इस्तेमाल कर देते हैं। टेल का इस्तेमाल करने की मदद से टेल की मोटिलिटी बढ़ जाती है, किसकी मदद से, कैस्पर की मदद से। और वो किसको सेंस करते हैं, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को सेंस करने के बाद इसकी मोटिलिटी बढ़ जाता है, तो स्पर्म जो है वो फ्लैशिंग मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और मूव टुवर्ड द ओवम की तरफ, कहां, या स्टमक और एम्पुलाई जंक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ओवम जो है वो एम्पुलाई और स्टमक जंक्शन पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब ठीक है, इसके बाद जब स्पर्म जो है, दिस इज द फ्लोपियन ट्यूब एंड दिस इज द फंडस रीजन ऑफ यूट्रस, दिस इज द यूट्रस। जब स्पर्म जो है यहां पे स्पर्म का क्या हो जाता है, अब कंपटीशन हो जाता है, एक रेस लग जाता है। अब यहां पे नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, यहां पे डार्विनिज्म आपने पढ़ा होगा, एक टॉपिक होता है नेचुरल सिलेक्शन। अब यहां सर्वाइवल ऑफ फीटस देखते हैं, कौन से स्पर्म जो है वो हाईली सर्वाइवल हो, उसका किसका मोटिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा हाईली एक्टिव होता है। जब यहां पे जब स्पर्म जिसकी रफ्तार बहुत तेज होगा वो हाईली मोटाइल होते हैं, वो हाईली एक्टिव होते हैं, तो एक स्पर्म जो है वो इसके नजदीक पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे एक प्रोसेस चलता है, वो है कैपेसिटेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपेसिटेशन। तो ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटेशन क्या होता है। कैपेसिटेशन, तो कैपेसिटेशन क्या होता है? कैपेसिटेशन इज द प्रोसेस इन विच द स्पर्म हैज द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द एग। यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म जो है, यहाँ पे प्रोसेस, कैपेसिटेशन वाला प्रोसेस कहाँ चलता है, ये नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। जो कैपेसिटेशन वाला प्रोसेस होता है वो फीमेल के फ्लोपियन ट्यूब के किस पार्ट में, स्टमक वाला पार्ट में क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है। ठीक है, तो कैपेसिटेशन क्या होता है, कैपेसिटेशन में स्पर्म के जो हेड के ऊपर वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर हो जाता है। वो क्यों रप्चर होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि मेल में नहीं होता। अगर मेल की एपिडेर्मिस में जाके देखेंगे, दिस इज द टेस्टिस, दिस इज द एपिडेर्मिस, के अंदर कैपेसिटेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां का जो एनवायरमेंट कंडीशन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अल्ब्यूमिन लेस रीजन होता है, अल्ब्यूमिन बहुत कम होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से कैपेसिटेशन नहीं होता है। अब क्या होता है इन केस ऑफ यूट्रस, दिस इज द फ्लोपियन ट्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस इज द स्पर्म। एक ही स्पर्म को दिखाता हूँ, बहुत मिलियन में यहाँ स्पर्म होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे अल्ब्यूमिन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कम होता है। कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है कोलेस्ट्रॉल से। जब यहाँ कोलेस्ट्रॉल का कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कम होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो यहां से क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का एफ्लक्स हो जाता है। एफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से स्पर्म की जो हेड होता है, यहां से क्या हो जाता है, स्पर्म के हेड से जो केप होता है वो रप्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कैपेसिटेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जब केप यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे दिस इज द, तो इसके बाद इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब केप ब्रेक हो गया, इसके नीचे और एक एंजाइम होता है जिसको क्या कहा जाता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम कहा जाता है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, अब दिस इज द एक, यहाँ पे क्या होता है, कोरोना रेडेटा होता है। ठीक है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करते हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम कोरोना रेडेटा की लेयर को रप्चर कर देते हैं, क्योंकि कोरोना रेडेटा इज द सेल्यूलर लेयर। तो यहाँ पे ये सेल्यूलर लेयर का बना होता है, तो ये लेयर यहाँ पे चिपक के होता है, एक एडिशन फॉर्म में होता है। किसकी वजह से ये चिपक के होता है,
एडिशन प्रोटीन एक एडिशन मॉलिक्यूल होता है जिसको क्या कहा जाता है, एडिशन मॉलिक्यूल, जिसको हाइलोरोनिक एसिड कहा जाता है, हाइलोरोनिक एसिड। तो ये हाइलोरोनिक एसिड को रप्चर कर देता है हाइलोरोनिडेज एंजाइम, जो क्या कहां पे प्रेजेंट होता है, यहाँ सिपॉन के यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये यहाँ से डिस्चार्ज होकर इसको क्या कर देते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये लेयर ब्रेक हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है वो होता है एक में कोरोना डेलेटा के बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है, दिस इज द उलिमा एंड दिस इज द जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा 3 प्रोटीन का बना होता है, ZP3 जोना पेलुसिडा प्रोटीन था, ZP2 एंड ZP1। अब क्या होता है यहाँ पे, अब सिपॉन के सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है इसके सरफेस पे, जिसको गॉल रिसेप्टर ग्लाइकोसाइल 1,2 ट्रांसफेरेज कहा जाता है। ये ZP3 के साथ बाइंड हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पीशीज रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है। यहाँ ये एक रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि ये अपना स्पीशीज का स्पर्म है कि किसी दूसरे का स्पर्म है। तो अगर किसी फीमेल ने, अगर किसी मंकी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो यहाँ क्या हो सकता है, ये स्पर्म जो है इसके साथ फ्यूज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जोना पेलुसिडा प्रोटीन उस स्पर्म को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये अपना स्पीशीज का है कि किसी दूसरे स्पीशीज का है। तो जोना पेलुसिडा प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पर्म, स्पेशली दिस ZP3 प्रोटीन। तो जब ये इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, स्पर्म का गॉल रिसेप्टर इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। कैल्शियम जब अंदर चला जाता है, इसके यहाँ पे एक एंजाइम होता है, एक्रोसोम कहा जाता है। यहाँ जब कैल्शियम अंदर जाने की वजह से यहाँ से क्या हो जाता है, एक्रोसोम जो है वो यहाँ से एक्सोसाइटोसिस कर देते हैं। एक्सोसाइटोसिस करने की वजह से यहाँ एक एंजाइम सिक्रीट कर देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, एक्टोसिन कहा जाता है। एक्टोसिन क्या कर देते हैं, इट हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ जोना पेलुसिडा। ये क्या करते हैं, जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व कर देते हैं। डिसॉल्व करने के बाद अब स्पर्म जो है आगे की तरफ मूव कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो उलिमा है, ठीक है। अब स्पर्म के पास दूसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इजिमो होता है, यहाँ पे दूसरा स्पीशीज रिकॉग्नाइजेशन होता है। 2 बार स्पर्म का रिकॉग्नाइजेशन होता है। स्पर्म एक का क्या हो जाता है, दिस स्पीशीज रिकॉग्नाइजेशन होता है। एक जोना पेलुसिडा की मदद से होता है, दूसरा जो है वो उलिमा की वजह से होता है। इसके पास इजिमो होता है और यहाँ क्या होता है, CD9 होता है, ठीक है, क्लस्टर डिवीजन 9। ये रिसेप्टर इजिमो रिसेप्टर इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं लॉन्ग एंड की तरह। जब रिकॉग्नाइज होता है तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो उलिमा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने के बाद क्या होता है, अब देखो यहाँ पे फ्यूज होने के बाद दिस इज द स्पर्म, दिस इज द डेड सेल। इसके बाद यहाँ पे फ्यूज होने के बाद यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हो जाता है। तो सोडियम अंदर, पहले सोडियम बहुत ज्यादा बाहर ज्यादा होता था, अब सोडियम जो है क्या हो जाता है, सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम जो है वो अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से पहले पॉजिटिव चार्ज बाहर था क्योंकि सोडियम बाहर था। अब सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से सारा सोडियम अंदर आ जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और बाहर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, डीपोलराइजेशन कहा जाता है। जब डीपोलराइजेशन हो जाता है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ क्या हो जाता है, इसके बाद यहाँ कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। तो कैल्शियम चैनल क्या कर देता है, कैल्शियम चैनल जब कैल्शियम अंदर चला जाता है, इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। दिस इज द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ऑफ एक्स। अब यहाँ क्या होता है, कैल्शियम अंदर हो जाने की वजह से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल अपनी सारा चीज को क्या करते हैं, बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ क्या कर देते हैं, इसके अंदर एक हाइलिन एक लेयर होता है, हाइलिन। ये क्या कर देता है, ये जोना पेलुसिडा जो लेयर होता है, बाहर हल्का लेयर होता है, अब ये क्या करता है, हाइलिन लेयर की मदद से ये बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। हार्ड होने की वजह से सिर्फ अब दूसरा स्पर्म इसके साथ फ्यूज करने की कोशिश करेंगे, मगर दूसरा स्पर्म इसके साथ फ्यूज नहीं होगा, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीसिपर्मी कहा जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीसिपर्मी में बहुत अहम रोल निभाता है पॉलीसिपर्मी। सिर्फ एक ही स्पर्म जो है एक वर्म के साथ फ्यूज हो जाता है, दूसरा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बहुत अहम रोल निभाते हैं प्रिवेंशन ऑफ पॉलीसिपर्मी में। और दूसरा डीपोलराइजेशन जो क्या करते हैं, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीसिपर्मी, और दूसरा जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या करते हैं, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीसिपर्मी करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब एक स्पर्म इसके साथ फ्यूज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का एक्सोसाइटोसिस हो जाते हैं, इसके अंदर हाइलिन होते हैं, वो बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा क्या हो जाता है, बहुत ठीक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब स्पर्म क्या करेंगे, स्पर्म यहाँ क्या रिलीज करेंगे, यहाँ दिस इज द स्पर्म। अब स्पर्म जो है सबसे पहले अपनी न्यूक्लियस इसके अंदर देंगे। दूसरा क्या यहाँ पे देंगे, स्पर्म के पास एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये यहाँ
एक के पास ये क्या देते हैं, एक तो न्यूक्लियस देते हैं और फीमेल का न्यूक्लियस जहां ऑलरेडी होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस और मेल का हैप्लॉइड न्यूक्लियस जहां फ्यूज हो जाते हैं उस प्रोसेस को कैरियोजेनी कहा जाता है। ठीक है, कैरियोजेनी। और इसके बाद यहाँ प्रॉक्सिमल सेंट्रीज क्या अहम रोल निभाते हैं। अब यहाँ पे ये फेज जो है किसकी फेज में होता है, ये मेटाफेज सेकंड पे क्या हो चुके होते हैं, वर्म जो है वो अरेस्ट हो चुके होते हैं मेटाफेज सेकंड पे। अब क्यों होते हैं मेटाफेज सेकंड पे, क्योंकि उसके पास स्पाइनल फाइबर नहीं होता है। अब ऑलरेडी प्रॉक्सिमल सेंट्रीज क्या करते हैं, एक स्पाइनल फाइबर इसके पास पहुंच गया, अब ये क्या करते हैं, डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब कैरियोजेनी की वजह से मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, इसके बाद क्या होता है, जाइगोट बनते हैं। जाइगोट की बात, इसके बाद यहाँ एक प्रोसेस चलता है जिसको क्या कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैंने आपको पढ़ाया फर्टिलाइजेशन में, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहां हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन में रोल ऑफ यूट्रस इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन किस तरह रोल निभाता है, फिर स्पर्म एंट्री, टेल किस तरह स्पर्म का मूवमेंट कर रहा है, फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कैपेसिटेशन के बारे में पढ़ाया, फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया फिजिकल एंड केमिकल स्टेज, जैसे हाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो कोरोना डेटा को ब्रेक करने में मदद कर देता है, एक्ट्रोसोम जो है वो जोना पेलुसिडा को लेयर को ब्रेक करने में मदद कर देता है। सिनगेनी में क्या हो जाता है, फ्यूजन ऑफ मेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड उलिमा लेयर ऑफ एक, जहां पे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाता है उसको सिनगेनी कहा जाता है। और जो लास्ट स्टेप मैंने आपको पढ़ाया कैरियोजेनी, यहाँ पे क्या हो जाता है, मेल और फीमेल का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, उसको क्या क्या कहा जाता है, यहाँ पे मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद यहाँ जाइगोट बनते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कैरियोजेनी कहा जाता है। इसके बाद तो ये सारा, इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस सारे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद मैंने आपको प्रिवेंशन ऑफ पॉलीसिपर्मी पढ़ाया। तो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीसिपर्मी में क्या होता है, बहुत अहम रोल निभाते हैं कौन, यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, क्योंकि जब एक स्पर्म इसके साथ फ्यूज हो जाता है तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है वो बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद उसके अंदर हाइलिन होता है, वो जोना पेलुसिडा को क्या कर देते हैं, वो थिक कर देते हैं, बहुत मोटा कर देते हैं। और यहाँ पे जो ZP3 प्रोटीन होते हैं वो उसको भी डैमेज कर देते हैं, क्योंकि ZP3 प्रोटीन जो है वो स्पर्म के साथ बाइंड हो रहा था। तो जब यहाँ ZP3 प्रोटीन ही फंक्शन नहीं करेंगे तो एक ही स्पर्म इसके साथ फ्यूज हो जाता है, दूसरा स्पर्म फ्यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वो पॉलीसेपर्मिक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है डिस्चार्ज हो जाता है और क्या कर देते हैं, ये इस जोना पेलुसिडा को बहुत हार्ड कर देते हैं। इसके बाद मैंने आपको पढ़ा स्पर्म जो है वो एक को क्या देते हैं, एक तो पहला अपना न्यूक्लियस, दूसरा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, तीसरा साइटोप्लाज्म देते प्रोवाइड करते हैं और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। मगर जो मेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डिसफंक्शनल होते हैं, वो फंक्शन नहीं करते। तो इसके अंदर फीमेल जो जाइगोट के अंदर किसका माइटोकॉन्ड्रिया रोल निभाते हैं, वो निभाते हैं फीमेल का खुद का माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अहम रोल निभाती है। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया एक अहम रोल निभाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैटरनल इनहेरिटेंस दिखाते हैं। ठीक है, तो नीट के एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, मेल स्पर्म जो है वो वर्म को क्या प्रोवाइड कर देते हैं, एक तो न्यूक्लियस, दूसरा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, तीसरा उसका साइटोप्लाज्म और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा क्लीवेज होगा। ठीक है, तो मैं अपनी टॉपिक यहाँ पे अख्तिताम कर देता हूँ। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद हुसैन, आपका मैथ टीचर, आपको मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। आपके मैथ का 4th यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स। इस चैप्टर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि बच्चों आप सभी को मालूम है, पॉलिनोमियल यानी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिटरल और कांस्टेंट से बना है, लिटरल्स एंड कांस्टेंट्स से मिलकर बना है, यानी ये है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल या यूँ कहेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल एंड कांस्टेंट
ने मिलकर बना है। जैसे इसका जनरल फॉर्म अगर मैं कहना चाहूँगा x प्लस b का जनरल फॉर्म जिसमें a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, इसी तरह से b भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल को मैं थोड़ा सा इस तरह से बताना चाहूँगा, यानी कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है और वेरिएबल का वैल्यू चेंज होते रहता है। चलिए ये तो जनरल चीज़ होगी पॉलिनोमियल के बारे में। फिर इसी पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाकर इसकी जो मुख्तलिफ काइंड्स पे अगर हम जाएंगे तो काइंड्स के दो तरीके से, दो बुनियाद पर, दो, एक हो गया इसके नंबर ऑफ टर्म्स के बुनियाद पर और दूसरा है इसके डिग्री के बुनियाद पर इसकी काइंड्स होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बना होता है, एक या एक से ज्यादा टर्म्स से मिलकर बना होता है। टर्म्स की बुनियाद पर, अगर हम टर्म्स की बुनियाद पर बात करेंगे तो टर्म्स की तादाद एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। अगर पॉलिनोमियल एक टर्म से मिलकर बना होगा तो इसको मोनोमियल कहा जाता है, यानी एक टर्म से मिलकर बना होगा। फॉर एग्जाम्पल 2x एक टर्म है, इसमें एक कांस्टेंट 2 और वेरिएबल x। इसी तरह से थोड़ा ब्रीफली बताऊं, ये हमारा मेन जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर नेक्स्ट, अगर यहां पर टर्म की तादाद 2 हो, फॉर एग्जाम्पल 2, जिसे हम लिखेंगे 2x प्लस 3, यहां पर दो टर्म्स हैं, पहले एक था, अब दो टर्म। जब दो टर्म होगा तो इसे बाइनोमियल कहा जाता है, बाइनोमियल। इसी तरह से अगर टर्म की तादाद 3 हो, फॉर एग्जाम्पल, इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं बाइनोमियल का। फॉर एग्जाम्पल आप इसको 2x² प्लस x भी कह सकते हैं, ये भी एक बाइनोमियल है क्योंकि यहां पर दो टर्म्स। इसी तरह से तीसरी चीज, जहां पर टर्म की तादाद 3 हो तो उसे ट्राइनोमियल कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x² प्लस 2x प्लस 5, 1 2 3 टर्म्स है। एक जरूरी चीज में शायद मैं भूल गया, वो ये है कि एक पॉलिनोमियल के लिए, क्योंकि पॉलिनोमियल किससे बना है, पॉलिनोमियल हमारा एक तो वेरिएबल से बना है, दूसरा कांस्टेंट से बना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पॉलिनोमियल के लिए हमारे जो वेरिएबल का डिग्री ऑफ द वेरिएबल, डिग्री की अगर बात करेंगे, डिग्री होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर इसका डिग्री होना चाहिए। जैसे अगर हम बताएंगे, फॉर एग्जांपल यहां से अगर हम बात करेंगे, यहां पर हमारे पास जो डिग्री इसका है दैट इज 1 प्लस 1। इसी तरह से यहां पर डिग्री 2 है, प्लस में हमेशा होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेंगे 2x रेज पावर माइनस 1, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं, क्योंकि इसका डिग्री नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल में अगर हम और एक भी बात कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/x, यहां पर इस वेरिएबल का जो डिग्री है
दैट इज x रेज पावर -1 हुआ, तो ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ये तो सिंपली पॉलिनोमियल की बात हम करेंगे। तो हमारे पास टर्म्स के बेस पर इसकी बहुत सारे किस्में, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसी तरह से टेट्रानोमियल, डिग्री के हिसाब से। अब उसके बाद अगर हम मेन चीज जो दूसरी बात यानी वो है इसकी डिग्री के बेस पर अगर हम पॉलिनोमियल की काइंड्स को बताएंगे डिग्री के बेस पर। पहले हमने जो बात किया वो था इसके टर्म के बुनियाद पर, बेस पर, यानी टर्म के हिसाब से इसका बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। क्योंकि हमारे पास सिलेबस में फिलहाल ट्राइनोमियल और खैर इसमें टर्म्स की तादाद तो लिमिटेड नहीं है। अब डिग्री की अगर बात करेंगे, डिग्री के बेस पर, डिग्री के बेस पर बात करेंगे तो डिग्री जैसे हमारे पास में पहले एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल x, तो इसका डिग्री हमारे पास 1 आ गया। या कहीं पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 2x, इसका डिग्री 2 है, ये भी एक टर्म आ गया। कहीं पे 2 टर्म भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इसके पीछे अगर हम 3 जोड़ देंगे तो ये 2 टर्म बन गई। इसी तरह से फॉर एग्जांपल 4x³ प्लस 2x² प्लस x, ये सब के सब पॉलिनोमियल है, लेकिन इनमें फर्क है डिग्री का। कहीं पे डिग्री हमारा 1 है और कहीं पे डिग्री 2। अब डिग्री किसको कहेंगे? जिस वेरिएबल का सबसे बड़ा डिग्री, सबसे बड़ी पावर, ये इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। क्योंकि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और यहां पर वेरिएबल x है, तो पॉलिनोमियल इन x हम कहेंगे इसका, ये भी पॉलिनोमियल इन x हुआ। अब डिग्री की बात करें तो सबसे पहले हमने ले लिया डिग्री 1। जब डिग्री 1 की बात करेंगे, डिग्री 1 की बात करेंगे तो 1 अगर होगा डिग्री, जैसे हमारे पास x रेज़ पावर 1 है, इसी तरह से ax अगेन डिग्री 1। जब डिग्री 1 होगा तो इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद जो हमारा मेन आज का जो टॉपिक है उस पे हमारा आता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 पावर 2, डिग्री जिसका 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास हो गया मेन डिफिनेशन। यानी वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2, यानी जिसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल, हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल, इसके अंदर वेरिएबल यहां पे भी x है, x है, लेकिन सबसे बड़ा जो डिग्री है, सबसे बड़ा डिग्री 2 हो अगर, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहां पर बताया ये वाला 2x² प्लस 3, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या है? पॉलिनोमियल किससे बना है? बहुत सारे टर्म्स और बीच में इसका कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस वगैरह है। और डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें डिग्री अगर 2 होगा तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका अगर हम जनरल फॉर्म की अगर बात करेंगे, जनरल फॉर्म इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उसके लिए हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्म है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहेंगे ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x है, वेरिएबल इन x, और इस वेरिएबल का सबसे बड़ा डिग्री, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, छोटा हुआ, यहाँ पर डिग्री 2 है, सबसे बड़ा डिग्री 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें a, जैसे हम अभी हम बताएंगे फिर एक बार, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जिसमें a क्या हुआ? a तो कांस्टेंट है, और दूसरी चीज कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम बी की बात करेंगे, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसी तरह से सी हमारे पास, सी तो कांस्टेंट है, सी हमारे पास कांस्टेंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां हमारे पास ए है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो यहां पर जो ए हमने लिखा, ये हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जरूरी कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्या होगा अगर ए 0 के बराबर आ जाएगा? तो ए 0 के बराबर अगर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इसी की हम बात करेंगे, ए की जगह पर अगर हम 0 लिखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये ओवरऑल 0 हो गया और यहां पर डिग्री इसका 2 से खत्म हो गया, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, यानी 0 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं, सॉरी, मेन चीज की 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब उसी तरह से जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास है 4x³ + 2x² + x, जैसे हमारे पास 4x³ + 3x² + 4 मान लीजिए, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहां पर हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 है, 3। अब 3 होगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बना, क्योंकि इसका डिग्री 3 है। तो इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपके सिलेबस में फिलहाल क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही है। तो अब हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बात कर रहे थे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात। अब जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉरी पॉलिनोमियल में, अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल जो फॉर्म हमने बताया, अगर यहां पर इज इक्वल टू भी साथ में शामिल हो गया, जैसे हम बताएंगे यानी ax² + bx + c, अगर इसमें ये इज इक्वल टू का निशान लग गया, ये अगर 0 के बराबर कंसीडर हो गया, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे थे, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्योंकि यहां पर इज इक्वल टू का साइन लग गया। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि आज हमारा मेन जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, आप लोगों को पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल 2 हो और उसके साथ बीच में इज इक्वल टू का साइन अगर आ गया, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारा जो मेन टॉपिक यहां पर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर a 0 के बराबर आएगा तो उस सूरत में ये टर्म ओवरऑल 0 बन गया, तो हमारे पास डिग्री उस सूरत में 2 नहीं रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा उस सूरत में। तो ये हो गया हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़कर हमारे पास इसकी थोड़ा सा हम काइंड्स की बात करेंगे। काइंड्स की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेनली 2 किस्म का होता है। यानी अगर हमारे पास यहां जो हमने कांस्टेंट की बात किया, वेरिएबल के साथ जो a है, b और c, अगर हमारे पास ax² + bx = 0, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें b इज इक्वल टू 0, जैसे हमारे पास जनरल, अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें + c = 0, ये जनरल फॉर्म है। तो इसमें अगर b 0 के बराबर है और
सी भी अगर नॉट इक्वल टू 0 एक कंडीशन ये होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अगर 0 के बराबर है और c अगर 0 के बराबर नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल में अगर हम बात करेंगे मसलन ax स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 0 होगा तो ओवरऑल ये खत्म हो जाएगा, प्लस c बचेगा विच इज इक्वल टू 0, एक ये हो गया। तो इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। फर्स्ट काइंड दैट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर b का वैल्यू 0 के बराबर होगा, b की वजह पर अगर 0 होगा तो उस वक्त में पूरा 0 बन जाएगा। हमारे पास आगे x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल 0, या इसके एग्जांपल में जैसे मैं कहूंगा 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल 0, एक ये हो गया। या और एक चीज, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर ये दोनों 0 के बराबर होगा, यानी b और c 0, अगर हमारे पास b भी 0 के बराबर है और c भी 0 के बराबर है, तो उस वक्त में हमारे पास जनरल फॉर्म इसका हो जाएगा ax स्क्वायर, b भी 0 होगा तो ओवरऑल ये भी 0 होगा, c भी 0 होगा तो ओवरऑल b इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। यानी इसका एग्जांपल आप इस तरह कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक किस्म हो गया। इसको भी हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जहां पर b का वैल्यू 0 के बराबर हो या c का वैल्यू भी 0 के बराबर हो, तो उस सूरत में ये एक प्योर क्वाड्रेटिक कहलाता है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिक्स्ड में क्या होगा कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, b का वैल्यू मेन चीज है, b जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर c 0 के बराबर भी होगा तो भी चलेगा, यकीनन a तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर होगा तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। अगर b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो उस वक्त में हमारे पास जनरल फॉर्म इसका क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx। अगर c मान लो 0 के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल c जो है 0 के बराबर है, तो उस सूरत में ये हमारे पास एक फॉर्म भी आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0, एक ये। या इसका एग्जांपल मैं इधर इस तरह ले लूं, यानी इसके एग्जांपल में इस तरह से ले लूंगा, फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, एक ये। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम कहते हैं मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर b 0 के बराबर होगा तो इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो उस सूरत में हम इसको कहते हैं मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसका और एक नाम है कंप्लीट, यानी एक हो गया मिक्स्ड भी है या इसको कहा जाता है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसके काइंड्स। अब उसके बाद हमारे पास जो मेन, अब मैं थोड़ा सा जनरल एक्सरसाइज पे थोड़ा आपके जाना चाहूंगा, एक्सरसाइज 4.1। उसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि क्या दिए हुए कुछ पॉलिनोमियल्स या कुछ इक्वेशंस जो दिया है, एक्सप्रेशंस, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे इसका एक एग्जांपल में बताऊं, जैसे हमारे पास है x प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे बताएंगे, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, दोनों साइड से सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। पहले हम इस साइड को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा, जो आप लोगों को मालूम है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
क्योंकि a की जगह पर x है तो x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स दैट इज 2 इंटू 1 2 हुआ और x करेंगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 और दूसरी तरफ से 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 3 6 सिंप्लीफाई किया a प्लस b का होल स्क्वायर के हिसाब से तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गई। इसी तरह से दूसरी साइड से 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 3 6। अब नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसको साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया माइनस 2x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा x स्क्वायर 2x एंड 2x विल गोज टू कैंसिल तो हमारे पास ये आ गया माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका डिग्री देखेंगे हमारे पास सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल 2 है। हमने पहले ही बताया जिस इक्वेशन में अगर डिग्री 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए ये क्या है इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। इसी तरह से और भी कुछ एग्जांपल्स आप यहां से कर सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो इसमें और एक चीज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा क्योंकि आपका जो JNK बोर्ड के मैथ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। चेंज मीन इसमें ज्यादा चेंज नहीं, आपके सब्जेक्ट में थोड़ा सा ये जो चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज कहीं पे ऐड किया है या किसी एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐड किया है। इसी एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक दो क्वेश्चन ऐड किया है तो एक क्वेश्चन मैं फिर से थोड़ा आपको यहाँ हल करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास है x प्लस 2 होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगेन एक बार फिर से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी इस्तेमाल होगा। फिर एक बार a प्लस b का इस बार होल क्यूब है, हाँ होल क्यूब है। हल करेंगे तो क्या होगा a प्लस b का होल क्यूब तो ये होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a की जगह पर हमारे पास x और b की जगह पर 2 का स्क्वायर। या कि साइड वाले को हमने सिंप्लीफाई किया। दूसरी साइड से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 2x से मल्टीप्लाई करने पर 2x का क्यूब माइनस 2x हुआ। फिर इसको आगे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया x क्यूब प्लस 2 2 4 4 2 8 प्लस 2 3 6 x क्यूब। फिर इसके बाद 2 2 4 4 3 12 x यहाँ पर स्क्वायर सॉरी यहाँ से क्यूब नहीं आ जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर 12 2 2 4 4 3 12 x। दूसरी तरफ से 2x क्यूब माइनस 2x। फिर थोड़ा सा अब हम इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब। चलिए थोड़ा डिग्री के हिसाब से सीखेंगे 6x स्क्वायर फिर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 में से 1 निकालने पर हमारे पास माइनस x क्यूब 6 प्लस 2 दैट इज 18 सॉरी x 6x स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर वाला ही है और 12 और 2 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगेन एक बार फिर से अगर हम इसका डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री हमारे पास 3 है। तो जब डिग्री 3 होगा तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बच्चों इसी तरह से इसके आगे जो कुछ क्वेश्चंस है आप इसको खुद कर सकते हैं, इजी है। तो अगले टॉपिक के लिए मैं आपसे ब्रेक लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।